Okay, a very good evening to one and all. So we will be discussing the question ahead of question number 10. So we will start with question number 11 today, right? And these questions from 11 to 35, each of them carrying 1 mark. So let's start without wasting any further time, right? So as you can see on my screen, the question number 11 to 35, just a minute. Question number 11 to 35 belongs to E 1 mark category. Okay, sorry for the interruption, guys. So this is the question number 11. Here they are asking about the differential equation, right? They are asking here about the differential equation, and subsequently they are asking that these two equations which have been given, right? So the first equation which has been given here is this P, that is dy by dx plus x is equal to x sine y. Point to be noted that here, because here we have a term sine y, right, where y is a dependent variable, right, and its derivative is given like dy by dx, right? So generally if you have a linear equation, like they are asking the correct choice is linear or non-linear, the first equation, which is dy by dx is plus x is equal to x sine y, basically non-linear. Why? Because it should be a simple function, right, rather than involving y here as a sine y, right? So in linear differential equation, the dependent variable, which is generally you call as y, right, and its derivative appear in a linear manner, right? But here it is in a sine wave form, so it's a non-linear function. Like sine function is a non-linear function, so that's why it have been given uh, 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 that's why it have been given as a non-linear stuff. So this term which is there made it a non-linear equation because it is being given here as sine y, so it becomes non-linear, right? It is non-linear. If you talk about this equation nature wise, it is considered to be the non-linear type, right? Because we have the dependent variable y in the sine term. The second equation, if you see here, dy by dx is equal to a plus xy e to the power x into y. Here the dependent variable do not involve any kind of complex stuff. So if it is not involving any sort of the complex stuff, right, this is linear because the dependent variable y appear linearly here. Like y here is linear, y here is linear. It is not having anything which is exponential or sine or cos. So this equation is basically linear, right? So we can also see the explanation here which we have attached. Let me show you that also. Yeah.
So you can see here the explanation also which we have attached along with the questions, like you can see here. So if you talk about the first equation, which is a non-linear, this equation is non-linear because the term sin y involves the dependent variable y and its derivative, right? And the second statement which you can see, in linear differential equation, dependent variable and its derivative appear in the linear manner without non-linear functions such as sine, cos, e to the power x. So this is basically linear. So that's why the first equation is non-linear and the second equation is linear. So here if you see in this equation, it is basically appearing as linear variable. So that's why the equation number 1 is basically non-linear and equation number 2 is basically linear. I hope it is making the sense, right? And yeah. So is this question clear to each and everyone that P is non-linear and Q is linear? Because there you involve a sine function which is a non-linear. So the correct answer here is B. The correct answer here is B, that P is non-linear while Q is linear. Clear है सबको? जल्दी बताइए, जल्दी से बोलिए भाई फटाफट. क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है कि नहीं है? वो नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर साइन टर्म आ गया और वाई आ गया. तो वाई जो होता है गाइस वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में नहीं आना चाहिए, जैसे साइन कॉस ई टू द पावर एक्स. अगर वो वहां आ रहा है मींस दैट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन. क्लियर है सबको ये 11th क्वेश्चन? श्योर? चलिए अभी हम आगे चलते हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12. So this is the question which is coming from the matrix, and specifically it is talking about question number 12. It is talking about the matrices and P and Q are square matrices. Kind point to be noted. वो बोल रहा है ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? कैसी मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों. जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. यस, बट वो y में होनी चाहिए ना. ठीक है, अगर y में वो है तब मैं उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन मानूंगा. ठीक है ना? ऐसे तो अगले वाले में e टू द पावर x है तो y में होना चाहिए. डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, राइट? सो कंसिडर द फॉलोइंग. कहता है p इनवर्स टू इनवर्स, तो ये हो जाएगा p, राइट? इनवर्स का इनवर्स p हो गया. एंड अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम और कॉलम का रो. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम पहले मैट्रिक्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देन आई विल कम टू दिस क्वेश्चन. अभी हम मैट्रिक्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ठीक है, देखिए आप. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जब बात करेंगे आप, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कट कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें आप देखिए, अगर ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इनवर्स ए इज ए, दैट इज ट्रू, वो वहां भी दिया हुआ है. ए इंटू बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ए बी सी का इनवर्स इज सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, वेरी ट्रू. ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट? इफ ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज. एंड ए टू द पावर एन inverse is a to the power minus n where a is a square matrix and if n is greater than 0. तो ये प्रॉपर्टी जो लागू होती है, अगर जो आप कह भी रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो लागू होती है दैट a is equal to a minus is equal to a to the power minus n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होती है. ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है? और p और q दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कहीं पे भी ये नहीं देख रहे हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही हो दैट q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q ट्रांसपोज. जो वहां पे एक मेंशन था कि ये प्रॉपर्टी कहीं पे नहीं देखने को मिल रही है दैट q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q का ट्रांसपोज. ठीक है, ऐसा नहीं मिल रहा है कहीं भी. तो मतलब ये कहीं से भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आ रही है. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, हम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ कुछ थोड़ी सी. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है ध्यान से देखिएगा.
तो यहाँ पे इफ यू सी इट हैव बीन मेंशन हियर दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। उसको छोड़िए, आप नीचे आइए। अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये जो है माइनस नहीं होता है, सिर्फ खाली ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, माइनस नहीं आएगा। ऐसा माइनस वाला कब होता है? अगर आपको क्या कहे मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब हम कहते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो जो फीचर आपको दिया हुआ है वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चीजें मेरे काम की नहीं है, बाकी चीजें मैंने ऊपर पढ़ ली है कि इनवर्स ऑफ दैट इज लाइक इफ आई हैव अ मैट्रिक्स p -1 to the power -1 that is p, it is given in first one। ये पहले वाले में ये प्रॉपर्टी मेंशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे पहले वाले में ही प्रॉपर्टी ये मेंशन कर दी है, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, दैट ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो बस अब मेरे पास दोनों लॉजिक आ गए, अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम क्वेश्चन पे वापस आ गए हैं और हम थोड़ा सा वर्क करके आए, थ्योरेटिकल वर्क करके आए हैं, एंड आफ्टर डूइंग दैट थ्योरेटिकल वर्क वी रियलाइज कि ये प्रॉपर्टी तो ठीक है, दिस इज ट्रू। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दिस इज ट्रू, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने किया कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो ये तो ट्रू हो गया, तो एक्स तो ट्रू है। लेकिन दूसरी जो मैट्रिक्स दी हुई है ये सिमेट्रिक का फीचर ना हो कि ये किसका फीचर था? स्क्यू सिमेट्रिक का। तो ये गलत हो जाएगा गाइस। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फीचर है। जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तभी ऐसा होता है दैट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज या q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q ट्रांसपोज। तो ये गलत हो जाएगा उस लिहाज से। एंड इफ इट इज रॉन्ग तो x इज ट्रू एंड y इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा गाइस फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, x इज ट्रू एंड y इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज a। क्या ये सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर ए क्यों है? जल्दी से बताइए भाई, फटाफट क्विकली। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सब कुछ हमने मेंशन किया है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स की है वो ये कहती है, ये मैट्रिक्स वाला भी जो है अली सर का पूरा कोर्स है मैथमेटिक्स का, सुधांशु चौरसिया सर का कोर्स है पूरा मैट्रिक्स का उस क्लाउड में। क्लियर है सबको कि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हमने कैसे सॉल्व किया, क्यों एक्स ट्रू है और वाई फॉल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखें जरूर, क्योंकि ये 11th-12th में आपने मैट्रिक्स पढ़ा होता है, वहीं से एक्सटेंड करके क्वेश्चन बनाया गया। ये कोई स्पेशल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेट मी टेल यू। ये कोई बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेट इट बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं गाइस। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, है ना। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं है कोई। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 भी 11th क्लास में जब आप पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां से क्वेश्चन पिक किया गया है मैथमेटिक्स में, या मैं कह लूं कि बाइनोमियल और इस तरह के एक्सपेंशन जो आप पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, हम यही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बात करता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है गिवन आर टू इनफाइनाइट सीरीज। देखो इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब इन्फिनिटी की टूवर्ड्स ये मूव कर रही है। तो एक सीरीज दी है प्यू और एक सीरीज दी है आपको क्यू, ठीक है। अब क्या है, जब इस तरह की सीरीज आप करते हैं तो अगर तो आपका जो सम है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए तो सीरीज हमारी कर रही होती है डाइवर्ज। और अगर जो सम है वो आपका कोई नंबर मिले, जैसे 1 मिला, 2 मिला, माइनस हाफ मिला, प्लस हाफ मिला, इस तरह का कोई नंबर मिलता है तो हम उसको कहते हैं कि वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अब हम इसको करने की ट्राई करते हैं कि जो पहली सीरीज है आपका, जो आपने पिक करी पहली सीरीज, ठीक है। पहली सीरीज जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ये एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन स्क्वायर समेशन। तो गाइस इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल लूं तो ये इस तरह की फॉर्म में पहुंच जाएगा। जब एन स्क्वायर आप डिवाइड कर देंगे इससे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर जो सीरीज होती है इसका जब आप सम करेंगे ना, ठीक है, अप टू, तो ये पहुंचेगा आपका इन्फिनिटी के आसपास।
तो ये सम, इफ दिस सम कम आउट टू बी अराउंड इंफिनिटी, सो इट विल बी अ डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, ठीक है, तो सीरीज मतलब डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो यहां से सीरीज आपकी है डाइवर्जेंट सीरीज हो गई, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं हम, जो क्यू है, तो पी तो मेरा डाइवर्जेंट हो गया। अब पी डाइवर्जेंट किसमें है? पी डाइवर्जेंट खाली एक ही में है, जिसको आपने बी का नाम दिया, पर डी में भी है। तो पी डाइवर्जेंट है तो जो है, दो ऑप्शन आपके पास रह गए, या तो बी या डी। क्यू को भी चेक कर लेते हैं। क्यू को जब आपने चेक किया, यहाँ पे कह रहा है समेशन ऑफ 1+1/n रेज टू द पावर -n। तो जब इस तरह की चीज को आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसको ओपन अप करेंगे गाइस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो ध्यान से, इसको अगर मैं यहां ले आऊं, दूसरा कलर ले लूं, तो आप इस तरह की सीरीज को जब सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में एक्सपेंड होगी। जब आप इसका समेशन करेंगे, 1 - nx प्लस ऑफ n+1/2 x², इस तरह से ये चलेगा सम। और इसको भी जब आप सम अप करेंगे, दिस विल ऑल्सो लीड टू इंफिनिटी। तो दिस सीरीज इज ऑल्सो अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। आप सॉल्यूशंस इसके चेक कर सकते हो, दोनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो सीक्वेंस सीरीज के सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे बोथ ऑफ देम कम्स आउट टू बी डाइवर्जेंट, क्योंकि दोनों का सम जो है इंफिनिटी को लीड कर रहा है। सो P is also divergent and Q is also divergent and hence the correct option is D। दोनों डाइवर्जेंट हैं क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सम की तरफ बढ़ रही हैं। तो बोथ P एंड Q आर डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि दोनों का सम जो है इंफिनिटी के आसपास आएगा। क्लियर है जी? कोई डाउट किसी को? जल्दी बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो भाई, बता दो, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज सीरीज आर डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। सब ये +1 +2 का मैथ्स है, इसमें कोई स्पेशल नहीं। और किसी को अगर मैथ नहीं भी आती है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी के पेपर को टैकल करके भी मैं डिसमेंटल कर सकता हूं, दैट इज द पावर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी मैथ करके ही जीतेंगे, आप बिना मैथ के भी जीत सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलिए, सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। यहां से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन यहां से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, है एक ही नंबर के। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया गाइस, ठीक है। इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं ना, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इंडिकेटर के आसपास चलते हैं। पहले क्वेश्चन की रीडिंग ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 की। उसके बाद हम इंडिकेटर के आसपास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? फॉर टेस्टिंग द एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी किस वजह से होती है गाइस? एल्कलिनिटी या बेसिसिटी आपको पता है कि जो आपके कार्बोनेट आयन और OH- आयन है, उनकी वजह से आपकी होती है, या बाइकार्बोनेट आयंस है, उनकी वजह से आपकी होती है अल्कलिनिटी जो है। और इसमें एनटीए में भी क्वेश्चन आया था पिछली बार अल्कलिनिटी पे, है ना। और अल्कलिनिटी पे पिछली बार क्वेश्चन भी आया था आपको पूरे फार्मूले से। फॉर अ वाटर सैंपल फॉर टेस्टिंग एल्कलिनिटी, फॉर अ वाटर सैंपल फर्स्ट फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है गाइस, वो एक बेसिक इंडिकेटर है जो कि बेसिक पीएच पे एक्ट करता है। इंडिकेटर इज एडेड, द वाटर रिमेन्स कलरलेस, वाटर कलरलेस रहता है फिनोफ्थलीन ऐड करने पे। हाउएवर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द सैंपल, द कलर टर्न्स येलो। और मिथाइल ऑरेंज को सैंपल रिस्पॉन्स कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक एसिडिक रेंज का इंडिकेटर है। पॉइंट में नोट, मैं पूरा इंडिकेटर ग्राफ दिखाऊंगा इसका। एज पर द ऑब्जर्वेशन द करेक्ट ऑप्शंस आर। यहाँ पे बस मुझे इतनी बात समझ में आई कि मिथाइल ऑरेंज के साथ वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कलर जो है आपका येलो हो रहा है मिथाइल ऑरेंज के साथ, ठीक है। और जो मिथाइल ऑरेंज से आपका जो कलरलेस से येलो हो जाता है, और जो फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है उसमें पिंक से कलरलेस की तरफ जाता है। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। अभी हम कुछ सॉल्यूशन वर्ती चीजें देखते हैं यहाँ पे, जो आपको चाहिए एक्चुअली में, जो यूटिलाइज करनी है हमें, ठीक है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ गया। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट से गाइस, क्या हमें सॉल्यूशन इसमें चाहिए। देखिए, ये ग्राफ जो है, ये बहुत ही बढ़िया डिपिक्शन है इसकी, ठीक है। इसके जैसी डिपिक्शन इसकी बड़ी मुश्किल है होनी, और ये बेस्ट ऑफ द डिपिक्शन है इस तरह के क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ। तो यहां पे अगर मैं देखना स्टार्ट करूं, मैं स्काई ब्लू कलर ले रहा हूं, तो पहले मैं चलता हूं मिथाइल ऑरेंज की तरफ, या आप कह लो मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जनरली मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज गाइस इस रेंज का इंडिकेटर है, जब पीएच आपकी 4.5 के आसपास या इस तरह की होती है,
यहाँ पे वो एक्ट करता है। अगर देखो नीचे वाला कलर जो मिथाइल ऑरेंज का है, यहाँ पे वो एक्ट करता है, मतलब वो एसिडिक पीएच पे एक्ट करता है। और जब वो एसिडिक पीएच पे एक्ट करता है, तो वो कलरलेस से कहाँ जा रहा था आपका? अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है? जब आप मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हो, तो आपका सैंपल जो है, वो क्या हो रहा है? कलरलेस से येलो, ठीक है? तो येलो के आसपास वो हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि येलो कलर शो करेगा अगर मैंने अपना येलो कलर, ठीक है जी? तो मिथाइल ऑरेंज मैं शो कर रहा हूँ और ये रिस्पॉन्स मुझे क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है? दूसरा, जब मैं फिनोफ्थलीन की तरफ जाता हूं, तो फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है वो बेसिक रेंज का इंडिकेटर है। और फिनोफ्थलीन की एक प्रॉपर्टी होती है, फिनोफ्थलीन आप देखिए कहां दिखा रहा है आपको, 8.2 से स्टार्ट होती है इसकी रेंज और 10 तक जाती है। तो यहाँ पे ये काम करेगा, जो इसका एंड पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है फिनोफ्थलीन का। और फिनोफ्थलीन में आपका क्या होता है? पिंक टू कलरलेस। ये भी आपको पता होना चाहिए, पिंक टू कलरलेस। तो यहां से दो बातें मेरे सामने साफ निकल के आई कि एक तो जो फिनोफ्थलीन है वो बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है? और जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपका जो है एक एसिडिक रेंज का इंडिकेटर है और इसमें रिस्पॉन्स जो है शो होता है, ठीक है? अब अब हम इस क्वेश्चन को लेके आगे प्रोसीड करेंगे वहीं पे वापस, ठीक है? तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। देखिए जी, अब तक आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो, तो अगर मैं यहां से ये ग्राफ देखूं, तो आपके हिसाब से रिस्पॉन्स तो किस रेंज में आ रहा है? रिस्पॉन्स इज कमिंग इन एसिडिक रेंज, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि जो रिस्पॉन्स है, एल्कलाइन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए ऊपर जाके, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व कि फॉर टेस्टिंग द एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी को मैं टेस्ट कर रहा हूँ फॉर अ वाटर सैंपल, फर्स्ट फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज एडेड। फिनोप्थलीन इंडिकेटर मैंने ऐड किया, वाटर रिमेन कलरलेस, मतलब उसके अंदर कोई भी बेसिक सब्सटेंस नहीं है। बेसिक सब्सटेंस होने का मतलब क्या है? कोई एल्कलिनिटी है ही नहीं। अगर उसके अंदर एल्कलिनिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो OH माइनस आयन तो वहां पे एब्सेंट है, ट्रू। वहां पे OH माइनस आयन एब्सेंट है क्योंकि उसके अंदर एल्कलिनिटी नहीं है। OH माइनस एब्सेंट, ये बात तो यहां से प्रूव हो गई। नीचे आए जब हमने मिथाइल ऑरेंज को पकड़ा, तो मिथाइल ऑरेंज को जब आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को हमने पकड़ा, तो मिथाइल ऑरेंज को पकड़ने के केस में क्या आ रहा है? व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड द सैंपल देन द कलर टर्न येलो, मतलब एसिडिटी है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर एसिडिक है सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस है तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो वहां पे मिलेंगे, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट। तो ये तो प्रेजेंट होने वाले हैं यहाँ, ठीक है? इन दोनों की प्रेजेंस होगी। या ग्राफ बाई भी मैं देख लेता हूँ। देखो, जब आपको मैं सीधा सा ग्राफ बना के समझाता हूँ इसका, जब ये ग्राफ ऐसे बनता है ना, तो इसमें इस तरह के दो पीकल आते हैं। एक तो ऊपर वाला आता है पीएच 8.3 के आसपास, जो एंड पॉइंट है मिथाइल ऑरेंज का। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? यहाँ पे OH माइनस एंड हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है? लेकिन OH माइनस यहाँ पे होते हैं क्योंकि अल्कलाइन होता है। लेकिन जब आप नीचे आ जाते हैं गाइस, इस जगह पे आ जाते हैं जब पीएच आपकी 4.5 के आसपास होती है, ठीक है, एट 4.5 के आसपास जब पीएच होती है तो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे एक बात तो मान लीजिए, जो सारे ऊपर वाली थे तो जीरो हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे बाई कार्बोनेट और हाफ ऑफ कार्बोनेट जो था वो तो आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन एसिडिक वाले बचेंगे, तो हाफ कार्बोनेट यहाँ पे बचेगा, ठीक है, और बाई कार्बोनेट भी बचेगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस इसमें सिंपल सा है कि भाई OH आयन तो नहीं मिलेंगे पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे। तो ऐसे में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है उसके हिसाब से आई हैव टू चूज द आंसर। देन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये तो होंगे बिकॉज दे हैव सम एसिडिक कंपोनेंट और H प्लस आयन, बट OH माइनस एब्सेंस होगा क्योंकि फिनोफ्थलीन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। किसी को कोई डाउट है इसमें? करेक्ट आंसर हियर इज बी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? जल्दी बताइए फटाफट। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? फटाफट बताइए गाइस।
अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपको एनटीए में भी मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि फिनोफ्थलीन ने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, फिनोफ्थलीन 0, तो फिनोफ्थलीन का काम ही घटा दो, OH माइनस तो होंगे नहीं, ठीक है। तो एक ही ऐसा है, ठीक है, जिसमें OH आयन एब्सेंस है, लेकिन एसिडिक कंपोनेंट है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज ने रिस्पॉन्स दिया, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ पे जल्दी बताइए फटाफट। चलिए हम आगे चलते हैं, फटाफट से हमें क्विकली करना है, अगले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंटेंसिव अपना नेट जेआरएफ में बहुत इंटेंसिव प्रिपरेशन आप लोग करते हैं हम लोग के संग लग के। फिर भी जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे जब गाइज हम आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। और इसमें आप ध्यान देंगे कि थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, एसिडिक में काम करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र किया है, तो थोड़ा तो पहले चलिए एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जब हम पढ़ाते हैं इकोलॉजी, देन वी टॉक अबाउट कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेना में होती ठीक है ना, और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड में होती है, ठीक है। तो ये आपको वहां से रिमेंबर आ रहा होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, ठीक है। जी हाँ, फिनोल्फ्थालीन भी काम करेगा। अगर आपका OH माइनस आयन शुरू में रिस्पांस देता है 8.5 के आसपास, दैट टेल अस की प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन है। शुभांगी गुप्ता, प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन एंड कार्बोनेट आयन इंडिकेट की कुछ बेसिसिटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चलते हैं गाइस फटाफट, पहले फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेते हैं 15 क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो फोटोसिंथेसिस जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है फोटोसिंथेसिस की, जब तक मैं बात करूं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, विच इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस इज द पाथवे विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज पायरुविक एसिड। ये हमने पढ़ाया आपको, जिसको आप पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या गैल्विन साइकिल में, कि ग्लाइकोलिसिस आपका ब्रेक डाउन हुआ और उससे आप अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। इट रिजल्ट्स इन द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना है कि जो लिविंग सेल का साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस है। इरिस्पेक्टिव वेदर दे आर एरोबिक और एनारोबिक, चाहे आपका ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, एरोबिक हो एनारोबिक हो, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस आपकी होगी, ये श्योर है 110%। सेकंड, जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो मैंने आपको कहा, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में होगी। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट एंड इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। कभी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, ये ध्यान रखना है। ग्लाइकोलिसिस जिसको आप कहते हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कभी भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये दो पॉइंट होपफुली सबको क्लियर हो। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच यू कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। So mitochondria are the organelle found in all eukaryotic organisms which is having the plasma membrane and the bound nucleus, eukaryotes. The participate in the complete oxidation of glucose after glycolysis. They are the site of Krebs cycle, जिसको आप Krebs cycle कहते हो, citric acid cycle कहते हो, T3 cycle कहते हो, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब जहां से एटीपी आपका बनेगा फॉस्फोराइलेट होके, ठीक है। और इसके अलावा राइबोसोम के बारे में भी कुछ कुछ कहा गया है, राइबोसोम भी एक पार्ट होता है सेल का। तो राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल एंड दे आर द नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, द प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्ले नो रोल इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। राइबोसोम का कोई रोल नहीं है। तो ये चार पांच पॉइंट हमने देखे जो इंपॉर्टेंट है। पहला हमें ये पता चला कि ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है एंड ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट और पायरुविक एसिड, जहां पे आ, हमने पढ़ाया था आपको कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, जब हम आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी पढ़ा रहे थे, उसको ब्लॉक करता है। और क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया आपको कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन नहीं होती है, लाइट रिएक्शन आपकी होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और यहीं पे आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे गाइस। अब आपको कुछ
इजी रहेगा करने में, क्योंकि एक बैकग्राउंड आपको रिकरेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं फटाफट से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 की जब आप बात करते हो तो पहली स्टेटमेंट को देखिए गाइस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है आपसे। पहली स्टेटमेंट में पढ़ता हूं आप ही के हवाले से, ठीक है। तो कहता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑफ द यूकैरियोट्स। Whereas the breakdown of the complex molecule yield energy takes place in the cytoplasm of the mitochondria। ये तो बिल्कुल सही बात हुई। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और जो ब्रेकडाउन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका कुछ पार्ट होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स। तो कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना ही अपने आप में करेक्ट करने के बराबर है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है, इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन वेल, मोस्टली यू विल डू इट वेल, क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है। दिस इज अ कॉमन सेक्शन विद एनटीए। सेकंड कहता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, राइट, whereas the breakdown of complex substances molecule yield energy takes place in the cytoplasm and in mitochondria, ठीक है ना। तो दूसरे में इसने क्या कहा कि प्रोकैरियोट, भाई प्रोकैरियोट में कैसे हो जाएगा, यूकैरियोट में होता था वो। तो यहां से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हाईलाइट हुई है, इन्होंने प्रोकैरियोट बोला है। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनल सारे साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं उसमें, तो प्रोकैरियोट में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, नंबर 2। ये अगर यूकैरियोट होता तो मैं मान लेता। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द स्टेटमेंट नंबर 3। कहते हैं 3 में क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आप एनारोबिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल सही बात। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में विद ऑल द एंजाइम्स एंड मशीनरी, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, G6PD है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो मशीनरी है उसके साथ ही होगा ये काम। तो और इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे गाइस। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अलग चीज है, ग्लूकोज अलग चीज है, ग्लिसरॉल अलग चीज है। विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल टू सिट्रिक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। नहीं जी, ये तो नहीं होता है। ग्लिसरॉल टू सिट्रिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल टू सिट्रिक एसिड तो एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ये ब्रेकडाउन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नहीं है, इसको ग्लाइकोलिसिस नहीं कहते। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड व्हिच इज गिवन इन 3। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आप समझदार हैं, अब आपको पता चल गया भाई पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ए। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना ही अपने आप में बहुत काबिलियत का काम है। एंड वंस यू रीड द क्वेश्चन थॉरली यू आर डन विद द डे। तो आपका वो क्वेश्चन ठीक होगा पक्का पक्का। और ये कॉमन सेक्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इंजीनियरिंग वाले लोग ही कर पाए, ये एनटीए वालों का है सेक्शन, इसको आपको पकड़ के पीटना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। 1 and 3 आर करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 15 में? जल्दी बताइए। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ये 12th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, जहां पे फोटोसिंथेसिस और आपका जो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में ही ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है वहां पे, नीट और नीट वालों को, ठीक है। तो ये वहां पे आपको मिलेगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से है। एक कोर्स अनीस सर का है गूगल क्लासरूम में, एक कोर्स तान्या राली मैम का है गूगल क्लासरूम में, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हम भी कर चुके हैं एनटीए नेट में।
वहां भी कुछ कॉमन स्टफ है इसके बारे में, तो वहां से भी काफी कुछ आता है। तो दो तरह की चीजों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं भाई? तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार वे आउट ले लेते हैं, देन वी विल गो टू द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे दो टर्म का जिक्र हुआ है, एक तो एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक और एरोबिक ऑटोट्रॉपिक। एरोबिक कहने का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आप कहें एरोबिक है, जब भी गाइस आप कहें एरोबिक है, तो आप कहें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप कहें एनारोबिक है, तो आप कहें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे दो टर्म जिक्र हुई है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ आर दोज बैक्टीरिया विच आर फोटोसिंथेटिक। तो जब आप ऑटोट्रॉफिक कहेंगे ना, हमेशा ही उनको फोटोसिंथेटिक होना है, ठीक है? फोटोसिंथेटिक होगा मतलब अपना फूड खुद बना रहे। हेटेरोट्रॉफ दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स के लिए, डिपेंडेंट ऑन अदर। आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे इन दोनों के बारे में, चल के जरा अपने लिटरेचर से, और उसके बाद लौट के आएंगे इस क्वेश्चन नंबर 16 के पास। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा गाइस, वेरी इजी लगेगा आपको ये, ठीक है? इस पे हम अभी लौट के आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे विद इन अ सेकंड। अभी हम पहले अपने लिटरेचर पे चलते हैं फॉर द बेसिक होमवर्क, क्योंकि अच्छे से करने हैं तो फिर अच्छे से ही करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे ना जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग, क्योंकि अगर कल को क्वेश्चन आता है दोबारा से आपको मिलना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा ही होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ही मैं बात करूंगा इनके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो यहाँ पे फटाफट से हम देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए, इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मटेरियल एज सप्लाई ऑफ कार्बन, इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। अगर कोई कार्बन सप्लाई को यूज करके, ऑर्गेनिक मटेरियल में अगर आप कार्बन यूज कर रहे हैं, तो आप तो किसी सोर्स पे डिपेंडेंट है, तो आप तो हेटेरोट्रॉफिक हो गए। आप ऑटोट्रॉफिक कहाँ रहे? आप तो हेटेरोट्रॉफ हो गए, ठीक है? एक बात तो ये माननी पड़ेगी। ऑटोट्रॉफ रिक्वायर CO2, क्योंकि ऑटोट्रॉफ को फोटोसिंथेसिस करना है, इसीलिए दे ओनली रिक्वायर CO2 टू सप्लाई देयर कार्बन नीड्स। उनकी कार्बन नीड CO2 से फुलफिल होती है, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन द सन एंड एनर्जी आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं विच एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? ऑर्गेनोट्रॉफ्स यूज ऑर्गेनिक मटेरियल विच लिथोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इन सब के बारे में जो आपको दे दी जाएगी, ठीक है? और द रीडिंग पर्पस यू कैन यूज दैट। हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई है, मैं कुछ कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट करूंगा। हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बात हुई है, सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सोर्स। हेटेरोट्रॉफ्स यूज केमिकल एनर्जी, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं उनको, जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे ह्यूमंस और मशरूम हुए। इफ इट यूजेस लाइट फॉर एनर्जी देन इट इज फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। तो दो तरह के हो गए, जैसे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, ठीक है? तो ये दो तरह के एग्जांपल हैं आपके इसमें, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि कीमो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं या फिर फोटो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। कुछ बातें और इसके अंदर, हाँ, बाकी ये रीडिंग्स के लिए आप एक बार देख लेंगे। मैं वापस क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि आपका पर्पस इतने से फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स का पर्पस जो है इतने से फुलफिल हो जाएगा। तो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन अगेन। अब देखिए, आप खुद ही बताएंगे इसको। तो देखिए गाइस, अब देखिए आप इस क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, राइट रॉन्ग का डिसीजन लेते जाओ, यही इसमें सबसे अच्छी ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए गाइस, फिर से क्या कहता है? पहले कहता है एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक भी कह दिया, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हेटेरोट्रॉफिक कह दिया मतलब सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। तो ये तो ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर सकता है फॉर कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स, तो ये तो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक है, ये फोटोट्रॉफिक तो नहीं है, फोटो हेटेरोट्रॉफिक तो नहीं है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर सकता है एज अ कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरे पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या कहता है देखिए ध्यान से। सेकंड में कहता है एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज CO2। ये गलत हो गया भाई, ये तो किसके लिए होता था? ये किसके लिए होता था? ये होता था एरोबिक फोटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉफ जो CO2 यूज करते थे, वो फोटो ऑटोट्रॉफ यूज करते थे कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट मेरी साइड से गलत, क्योंकि CO2 तो यूज कौन करते थे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज करते थे विच आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस
using CO2. Now we are moving toward the third statement. What it says? Third statement says एरोबिक ऑटोट्रॉफ. अब ध्यान से देखिएगा, ऑटोट्रॉफ है. ऑटोट्रॉफ है तो मतलब या तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, या कीमोसिंथेटिक होंगे, किसी केमिकल पे डिपेंडेंट होंगे, है ना. तो एरोबिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज CO2, ये तो बिल्कुल सही बात है, फॉर कार्बन सोर्सेज एंड रिड्यूस सब्सटेंस ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CO2 ये यूज करेंगे और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है. तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक हो गया, स्टेटमेंट नंबर 3. ठीक है, चौथे स्टेटमेंट में चलते हैं गाइस फटाफट से. फोर्थ स्टेटमेंट सेज व्हाट? इट सेज एरोबिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया. एरोबिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है तो ऑटोट्रॉफ है तो भैया CO2 यूज करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करना है. ये तो नहीं ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को अगर ये यूज करते तो दे बिकम हेट्रोट्रॉफ. ये भी गलत हो गई लाइन, क्योंकि ये जो फीचर दिया हुआ है फोर्थ में, ये हेट्रोट्रॉफिक का फीचर है. तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है. तो खाली पूछा है करेक्ट कौन से हैं, तो करेक्ट तो सिर्फ दो ही हैं, 1 एंड 3. और 1 और 3 किस में दिए हुए हैं? सिर्फ एक ही में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए. क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, जल्दी से बताएं. इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, मैं सही बताऊं. बहुत सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे. ये सेक्शन भी कॉमन है विद एनटीए, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक है जी. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम बात करेंगे जब भी आप कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रन करते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए. और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है. कहता है स्टूडेंट वांट्स टू डिसाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस है उसको एरोबिक कहेंगे. फैकल्टेटिव, ठीक है, मतलब फैकल्टेटिव, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है. एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, तीन तरह के बैक्टीरिया उसने लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो काम करे. फैकल्टेटिव होते हैं अपनी मर्जी से, जब मौका आए वो एरोबिक हो जाए, जब मौका आए वो एनारोबिक हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बिफोर वी रीड दिस, लेट्स डू सम क्रॉस रिसर्च ओवर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं इस तरह के, जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दिखे जाए आपको, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर दिखे, वो हम देखते हैं फटाफट से एक बार. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे. यस, ये आ गया आपका टेबल. तो ये जो टेबल है गाइस, ये मेजर फीचर को बता रहा है एरोबिक मेटाबॉलिज्म के या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के. ध्यान से देखिएगा. This table is basically a major feature aerobic metabolism are complete metabolism and synthesis of substrate ending in a large quantity of biological growth. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है जो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं. 1 में ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन, 2 में फॉस्फेट डेवलपमेंट, ये दिए हुए नीचे प्रोसेस सारे देखिए. 1 में ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन, 2 में पॉलीफॉस्फेट डेवलपमेंट, 3 में नाइट्रिफिकेशन जो आपका नाइट्रोजन साइकिल में, 4th में डीनाइट्रिफिकेशन, 5th में पॉलीफॉस्फेट ब्रेकडाउन, 6 में सल्फाइड फॉर्मेशन, 7th में एसिड फॉर्मेशन और 8th में मीथेन फॉर्मेशन. ये सारे प्रोसेस के नाम दिए हुए हैं और ऊपर इन्होंने दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके. ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम दे हैव गिवन द ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, ठीक है, मिली वोल्ट में. और यहाँ पे प्रोसेस का नाम दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिए हैं और यहाँ पे कंडीशन दी है. तो ये मेरे काम की है, कंडीशंस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है. तो ध्यान से देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है किस प्रोसेस में, 1 2 और 3. 1 2 3 में गाइस कौन से प्रोसेस आ रहे हैं? 1 में ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन आ रहा है, ठीक है, अगर ध्यान से देखूं तो 1 में ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन आ रहा है, 2 में पॉलीफॉस्फेट डेवलपमेंट, 3 में नाइट्रिफिकेशन. मतलब नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्ट करता है, ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन में भी एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्ट करता है. और ऑक्सिक या एरोबिक होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर होगा तभी एक्सेप्ट करेगा. तो ये बात तय हो गई कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन कब होगी, व्हेन द प्रोसेस इज एरोबिक. व्हेन द प्रोसेस इज एरोबिक. और किस किस में होता है? ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडेशन में ये एज एक्सेप्टर एक्ट करता है. दूसरा ये नाइट्रिफिकेशन में एक्ट करता है, ये पता होने चाहिए आपको.
नाइट्रिफिकेशन में एक्ट करता है, और तीसरा पॉलीफॉस्फेट डेवलपमेंट। ये तो एक बात हुई जो समझने की है। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा हुआ है अगले में, नाइट्रेट कब होता है। नाइट्रेट अगर देखिए तो फोर्थ वन आ रहा है कुछ कुछ, और टू भी आ रहा है इसमें टच करता हुआ, तो फोर्थ वन में भी नाइट्रेट कब कब एक्सेप्टर है गाइस, एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक या एनॉक्सिक कंडीशन में नाइट्रेट एज ए एक्सेप्टर एक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि नाइट्राइट हमने पढ़ा था अभी, वो यहां एक्ट कर रहा था। ठीक है। तीसरा, सल्फेट कब करता है और कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक्स कब करते हैं, ये फर्मेंटेटिव एनारोबिक, ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म होता है फर्मेंटेटिव होता है, और एनारोबिक होता है तब हम करते हैं उसको, फर्मेंटेशन होती है एनारोबिक, तब हमारा या तो सल्फेट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक्स होते हैं। बस ये 4-5 इंफॉर्मेशन यहां से आपको पिक करनी थी। और यहां से मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन पिक करी कि जो क्या कहते हैं आपका नाइट्रेट एज ए एक्सेप्टर है, ध्यान रखें यहाँ पे, एनॉक्सिन में नाइट्रेट एज ए एक्सेप्टर है, नाइट्राइट नहीं है, ये गलती मत करना। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऑक्सिक में एरोबिक में होगा ही, एनॉक्सिक में नाइट्रेट होगा। सल्फेट और ये भी किस में है, एनारोबिक में है। आप देखिए अगर 3 मेन पॉइंट मुझे, इफ आई हैव टू पिक 3 मेन टेकिंग्स, तो ऑक्सीजन किस में है, एरोबिक में या ऑक्सिक में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाइट्रेट किस में है, एनारोबिक में। सल्फेट और कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक किस में है, ये भी एनारोबिक में है, फर्मेंटेटिव में। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। वापस जब गाइस आप अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने, क्वेश्चन अभी विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे, यस। सो क्वेश्चन नंबर 17 को जब हम दोबारा से देखते हैं, अब हम देखते हैं जब, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि देयर वाज अ स्टूडेंट हु वांट टू डिसाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डिसाइड किसके लिए, एरोबिक प्रोसेस में आपने पढ़ा ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक प्रोसेस में आपने पढ़ा नाइट्रेट होता है। ठीक है। फर्मेंटेटिव एनारोबिक में क्या क्या होगा, कार्बोनेशियस मटेरियल और सल्फेट। तो कहता है इन द कंटेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही तो होगी, ठीक है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में आपको क्या लगता है, क्या डिसॉल्व हो रखा होगा, ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो रखी होगी, या कुछ और होगा, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, यही समझना बहुत लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ गया, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही होगी। अगले स्टेटमेंट में क्या कहता है, अगले स्टेटमेंट में कहता है अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही है, तो भाई ये तो फिर ठीक हो जाएगा ना, कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर बैक्टीरिया, कौन से, एरोबिक। तो ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि एरोबिक के केस में ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसको तो मारो करेक्ट, ये तो हो गया करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन यू आर डीलिंग यू से नाइट्राइट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। ये गलत बात है, यहां पे नाइट्राइट नहीं होगा, यहां पे नाइट्रेट हो सकता है, पर कंडीशन एनारोबिक होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। यहाँ पे नाइट्रेट आएगा और कंडीशन भी एनारोबिक होगी। अभी मैंने आपको लिटरेचर इसका शो किया था कि नाइट्रेट कब कब एक्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं हम लोग, थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं हम, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। अरे एनारोबिक के लिए ये कहाँ एक्ट करेगी, एनारोबिक में तो नाइट्रेट है, सल्फेट है और कार्बोनेशियस मटेरियल है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, थर्ड भी गलत है ना। अब अगला जो है वो आपके लिए एकदम उपयुक्त है, नाइट्राइट। क्योंकि जो नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट ही बनता है आपका, तो नाइट्राइट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का क्या फायदा है, अगर मन आए तो एरोबिक और मन आए तो एनारोबिक, तो ये इसमें दोनों में ही काम करेगा, और यहाँ पे नाइट्राइट एक्ट करता है। नाइट्राइट एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फैकल्टेटिव के लिए, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन में आपका नाइट्राइट पहले अमोनिया टू नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है, और नाइट्राइट टू नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोकोकस, और दूसरे स्टेप में नाइट्रोबैक्टर।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ठीक हो गया। तो अब आपसे पूछता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मुझे तो दिख रही है 1 और 4। ठीक है, मेरे पास तो 1 और 4 करेक्ट है, तो 1 और 4 वाला गाइस एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए भाई, कोई डाउट है किसी को इसमें? जल्दी बताइए, एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर? हाँ देखिए, मैं चार्ट दोबारा शो कर रहा हूं आपको, कोई इशू नहीं। सी दैट चार्ट अगेन, क्योंकि दोनों का एरो लगा हुआ है नाइट्रेट पे ना, मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिए, देखिए नाइट्रेट का जो एरो है वो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो नाइट्रेट का जो एरो है, नाइट्रेट का जो बॉक्स है, वो देखिए किस किस को कवर कर रहा है, दोनों को कवर कर रहा है, दोनों में है। नाइट्रेट वाला जो बक्सा है गाइस, वो दोनों में है। देखिए यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? तो 4 नंबर जो डीनाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट से अमोनिया, तो डीनाइट्रिफिकेशन को कवर कर रहा है ना 4 नंबर को। डीनाइट्रिफिकेशन में तो नाइट्रेट ही कन्वर्ट होता है बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल में आप पढ़ते हो ना, तो इसीलिए 4 नंबर में ये कवर है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एरोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में भी और एनारोबिक के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको स्टॉप करेंगे बिकॉज वी हैव अ शेड्यूल क्लास फॉर अनदर प्रोग्राम। सो वी विल सी यू गाइज अगेन। होपफुली कल 2 क्लासेस होंगी डिस्कशन की, तो वी विल सी मोर क्वेश्चन। सो टिल 17 वी आर डन। सो आप यहाँ पे ट्यून रहिएगा, ये बहुत अच्छा डिस्कशन आपको बहुत बेनिफिट देगा। आई कैन अश्योर यू कि काफी क्वेश्चंस आप क्रॉस कनेक्ट करेंगे, 15-20 क्वेश्चन भी क्रॉस कनेक्ट कर सकते हैं वंस अगेन। ठीक है, so with this I will stop here. Once again we will start with question number 18. Thank you very much for your patience. Thanks for being here. Take care. See you guys again tomorrow.